Hey guys, welcome back to my channel. This is Anupriya, and for those who don't know me, I'm a medical student and I'm shooting this today's video with my sister, and she is also a doctor, so I thought why not to share her life experiences and of course the medical journey. So she's sharing her journey and experiences with us today. And yes, there might be some problem, means network issues, because we are not in the same city. That's why I'm adding the subtitle. Please manage with that, and I hope you will like So, it. guys, this time my sister is with me. Her name is Dr. Asa, and she has completed her MBBS from China and MD from AIMS. So, so how are you, Didi? Welcome back to my channel. Hi, I am fine. How are you? I am also good. So, how are I you hope you are doing feeling? well. Okay, how are you feeling to be here on my channel? I am feeling amazing. I am feeling amazing. Okay, It's really a great to hear you. okay. So today I'm going to ask you, as you also know, that I want to know about your life experiences and MBBS journey. So shall we start? Yeah. Okay, so my first question is, how was your childhood and what was your dream at your childhood? Okay. My childhood was good. During my childhood, it was not decided that I am going to be a doctor. Okay, Acha. means it like after I passed my 10th, then only I decided, okay, I want to be a doctor and something like that. Means not 10, exactly at the 8th class. Then I shifted. At that time, I was studying in the girls' college, so I changed my school. From that school, I went into the science side, and then that time only the feelings came, okay, I want to be a doctor, or I go in that profession. When I saw the doctors, so I feel the goosebump that time. I felt goosebump, so that time only I started. Means like means the feeling started, Okay, so in 12th and you then chose. I passed my. Okay, so Yeah. in 12th you chose that biology part, and after that what you did? Means I want to know about your BSc journey and that teaching wala stuff. Then after my 12, I did BSc, and that is in zoology and botany. And after that, I started preparation for the CPMT. Meanwhile, also I gave the CPMT examination, and during that I got the BDS. But I wanted to be MBBS doctor, so I continued the preparation and all, and then I didn't get the MBBS seat. So my father, means our father, decided have to shift, not here, means outside the India. So we consult with the counselor, and then I went to China for my MBBS. Okay, so मतलब यहाँ पर the situation was not that good because uh, जो वो motivation होता है ना that there मतलब I want to know that there will be some criticism before going that China, मतलब decision लेने के time पे आपको कुछ face करना पड़ा होगा, because I also went to Kyrgyzstan, so मुझे भी ऐसा कुछ सुनने को मिला था कि क्यों जा रही है ऐसा बाहर बाहर, तो आपने कैसे उसको face करा था? या मुझे भी लोगों ने, मतलब एक्चुअली मैंने उस समय बहुत सारे लोगों से डिस्क्लोज नहीं किया था। जब चाइना से जाके मैं फर्स्ट टाइम आई थी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर, देन पीपल्स आर लाइक, ओ माय गॉड, तुम चाइना से कर रही हो, चाइना में कैसा है, चाइना क्यों चली गई, ये वो ब्ला ब्ला। बट आई इग्नोर एवरीथिंग एंड आई फोकस ओनली ऑन माय स्टडी. आई सेड, ओ my result will show you why I went to China. Okay. So never hear a lot of the other people's. Focus on your study. Okay, so It's how your was your life, it's your experience? choice. Okay. Yeah. How was your experience with that? Experience was amazing, amazing, very nice. Actually, the faculty over there is also from the different country, like India, Nepal, Bangladesh, Pakistan. So we had no problem with the study and all.
because we can easily communicate there in Hindi and as well as the Urdu and all. So we easily grasp the things which we want to learn. Okay. And then the Chinese was compulsory over there to learn for the initial talk. It means essential for the livelihood over there. So it's like that. Mm. So That's that way. so कुछ मस्ती वाला कुछ भी आपने एक बारी वो शेयर करा था your that moment of Great Wall of China. Please share that thing. You went there. Yeah, that is very nice experience. Yeah, there is 1 week, like in a year, that is in the month of the October, the first week, the Chinese people celebrate there very nicely. So the national holiday is used to celebrate over there in China. So मैं और मेरी फ्रेंड ने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने के लिए। तो उसके लिए अचानक से हम लोगों ने लीव डाला और वी 3 गर्ल्स, मीन्स मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, मैं, मेरी फ्रेंड्स और एक पाकिस्तान की फ्रेंड थी, तीनों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने जाएंगे। तो अर्जेंट में टिकट बुक किया ट्रेन का और हम तीनों लड़कियां निकल गए। वहां जाने पे तो यहाँ तो खैर हमारे सारे फ्रेंड्स थे जो हेल्प करते थे, बट वहां we only 3 girls went there, and that is bit far from our city where we stay. Jinggangshan to Beijing is quite far. Okay. So but experience was very nice. We stay in a hotel, we booked the hotel, we stay in a hotel, and then the next morning we started our journey to visit the different places in the Beijing. It's amazing. It was amazing. Even I can feel like that. Okay. Okay. And before, after that, your exams were there. Everyone were terrified, right? Yeah, after coming from there, after coming from after returning back, we had a grand test, like, so. But I was prepared, means from the starting onwards. Okay, whenever the teacher gave the task, I complete that time only. So it was not like a pending. I just need a revision. So I had completed, and I got very nice mark in that. Yeah, you got a scholarship also. Very I good know marks. that. Yeah, I got a scholarship also. Yeah. Okay, so main motive ये बताने का था कि मस्ती साथ साथ Certificate of appreciation. Yes. मतलब पढ़ना तो है ही compulsory, but you should also enjoy. Yes. So because the time will pass so quickly and you will say, oh my god, now I am 21, 28, 29 ऐसे. So meanwhile you have to enjoy with your life. okay, so वापस से आने के बाद की जर्नी बताइए वो FMG वाली, how you cracked that and how you prepare for that. अच्छा, after चाइना से आने के बाद, लाइक मैं 2012 में यहाँ आई अप्रैल में, और सितंबर में एग्जामिनेशन था FMG का. So our means my friends and my target was that we will clear the FMG in the first attempt. Everyone wish in this world कि जो भी अगर FMG एग्जाम देता है वो चाहता है कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो. तो आने के जस्ट बाद हम लोग घर नहीं गए. We directly stay in Delhi. We landed Delhi and we stay in Gautam Nagar. Then from there I took a coaching. The name of the coaching was DIMS, and the duration for the coaching was for the 3 months, because already sessions are started. So मुझे जो भी बैच मिला मैंने एडमिशन ले लिया. MR बैच था, MR3, MR4, और उसके बाद से 3 month की स्टडी किया. And I used to solve a lot of MCQ. And this pattern I got from the China itself. They used to give, like, they give long question, short question, but along with that, they every test and every exam, they give 25 to 30 MCQ. This was a compulsory pattern over there. So we used to solve the MCQ questions. So here also when I came, then after reading the notes, I started to solve MCQ. Whenever the topic finished, I just start to solve the question. So और उसके बाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही FMG क्लियर हो गया. It's actually very easy. Those who study,
जो भी पढ़ेगा उसका एफएमजी क्लियर होना ही होना है, लेकिन हाँ आपका राइट पैटर्न होना चाहिए। ओके अब तो बहुत सारे ऑनलाइन एप्स हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो एवरीवन कैन पास। ओके। सो एक क्वेश्चन मुझे मिलता है, और मैंने भी देखा है कि बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही प्रेप लेटर और मैरो स्टार्ट कर देते हैं। सो शैल वी स्टार्ट लाइक दैट, स्टडिंग विद दैट ऑनलाइन सोर्स? कर सकते हैं, उसमें ये रहेगा कि आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही सॉल्व करो, ओके। उसके बियॉन्ड मत जाओ। लाइक फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाते हैं हम लोग को, एनआरट फिजियो बायोकेम, सो स्टिक ऑन दैट, ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चंस एमसीक्यू रिलेटेड टू दैट and try to clear your concepts. ओके। So it is good, but only focus on that subject. Do not go to do not jump into the like medicine and all. Like curiosity बहुत होती है बच्चों की कि नहीं मैं ये भी थोड़ा करके देखता हूँ, ये भी तो आएगा ही नहीं तो क्या फायदा है, उसको हटाओ। सिर्फ फोकस करो जो सब्जेक्ट चल रहा है और जो चैप्टर कवर हुआ है, so it will be more easier. अगर लाइक एनएट का अपर लिम हो गया है तो एनएट का अपर लिम का क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे ये नहीं कि मतलब कहीं से कुछ भी नहीं, सीक्वेंशियल मैनर्स में पढ़ाई करनी होती है। सो अब एफएमजी क्लियर हो गया है, एंड देन इसके बाद कैसी थी जर्नी, मतलब क्या स्टार्ट हुआ? आपकी शादी होने वाली थी। एफएमजी क्लियर करने के बाद से प्रोविजनल का पहले वेट किया, क्योंकि विदाउट प्रोविजनल वी कांट डू इंटर्नशिप, एंड आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल डू इंटर्नशिप इन इंडिया ओनली। तो फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अप्लाई करना शुरू किया, प्रोविजनल का वेट करने लगे। फिर दिसंबर में सितंबर में एग्जाम हुआ, फिर नवंबर तक रिजल्ट आ गया था, और उसके बाद से जनवरी दिसंबर से मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट किया, जो कि रूरल पोस्टिंग थी पीएसएम की, एंड उसके बाद से प्रॉपर पोस्टिंग आरएमएल की मार्च से स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, कुछ कुछ जैसे आरएमएल में एग्जाम्स भी होते हैं कई जगह पे इंटरव्यू होते हैं। तो मेरा 3-4 जगह पे क्लियर हो गया। लाइक हिंदूराव हॉस्पिटल में टेस्ट हुआ था, वो क्लियर हुआ, लेकिन हिंदूराव गौतम नगर से दूर था, सो आई प्रीफर्ड दैट कि आई विल डू इन आरएमएल और सफदरजंग का रिजल्ट लेट आया, आरएमएल का रिजल्ट पहले आ गया, क्योंकि सफदरजंग मेरे गौतम नगर से पास था, एम्स के इन फ्रंट में ही सफदरजंग है। लेकिन उसका रिजल्ट लेट आने की वजह से मैंने चूज किया कि ठीक है मेरा 15 दिन का बच जाएगा, जब तक रिजल्ट पता नहीं पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आई डोंट नो। सो बट आई गॉट द रिजल्ट ऑफ द आरएमएल, सो आई जॉइन आरएमएल एंड एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, वेरी नाइस। अच्छा, सो बेटर टू डू इंटर्नशिप इन इंडिया ओनली। या और यहाँ पे इंटर्नशिप के टाइम में आपको कुछ पे किया जाता था at that time? नहीं, स्टाइपेंड नहीं मिलती है, एक्सटर्नल्स को स्टाइपेंड नहीं मिलती है, That question also सिर्फ I get a इंटरनल lot. कैंडिडेट को। We do not get money anywhere, Okay. in foreign also and in India also. नो लाइक नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न मेरे फ्रेंड्स को, एक फ्रेंड को मिला था नॉर्दर्न रेलवे में, उसका कुछ है लाइक फर्स्ट 10 या 20 स्टूडेंट्स को वो स्टाइपेंड देते हैं, बट बहुत कम होता है। एक उस समय पे आई थिंक 5,000 और 8,000 पर मंथ के हिसाब से मिलता था, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप दे गिव द मनी, द होल मनी। Okay, okay. तो सिर्फ एक नॉर्दर्न रेलवे में मिलती थी और कहीं नहीं मिलती थी, और वो भी फर्स्ट 3 कैंडिडेट को या फर्स्ट 10 कैंडिडेट, कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। Okay. So अब FMG भी I mean internship भी complete होने वाला था, and then शादी वादी का plan चल रहा था, तो उसके या देन इंटर्नशिप के दौरान ही, इंटर्नशिप की मेरी लास्ट पोस्टिंग यानी लाइक दिसंबर मार्च में मैंने शुरू किया आरएमएल में, तो मेरी शादी नवंबर में हुई है 27 को। तो बात स्टार्ट, ऑब्वियसली गर्ल्स की एज को लेके थोड़ा इंडिया में ये रहता है कि नहीं सही टाइम पे शादी होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, सेटलमेंट वगैरह सही हो जाएगा लाइफ का। तो यस, तो उस समय नवंबर में शादी हुई, और फिर लाइक उस समय एक्चुअली अक्टूबर में मुझे डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से मैंने एक्सटेंशन ले लिया, इंटर्नशिप में मेरी एक्सटेंशन लग गई, तो और फिर शादी, उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया ऐसे करके। अच्छा, एक चीज और, फाइनली मार्च में क्लिनिकल का क्या था? मतलब चाइना से करके आने के बाद एंड देन डूइंग इंटर्नशिप हियर,
यू फाइंड दैट डिफरेंस, मतलब कुछ तो डिफरेंस मिला होगा ना इंटर्नशिप करते टाइम में आपको क्लिनिकल का? क्लिनिकल का डिफरेंस इन द सेंस कि पेशेंट के कम्युनिकेशन में वहां थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन यहाँ पे सेम था। लाइक वहां पे चाइना में सेकेंड ईयर में ही मैं कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स देखे थे, मतलब विद द सुपरविजन ऑफ द कंसल्टेंट. It is totally depend on your interest, like, so when I was interested to see the patient of the heart, because we used to hear ना कि हार्ट में ये है, हार्ट का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एमआई होता है, पीसीआई हो करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो जागरूकता टाइप की होती है. तो आई यूज टू टॉक टू कंसल्टेंट एंड देन यू से ओके कम आई विल शो यू द हाउ वी डू द पीसीआई एंड ऑल. सो ये तो मैंने एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में वहां देखा था. तो वहां के क्लिनिकल के यहाँ क्लिनिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है. वहाँ चाइनीज मेडिसिन भी देते हैं वो लोग. अपार्ट ऑफ द एलोपैथिक दे यूज टू गिव चाइनीज मेडिकेशन ऑल्सो. बट यहाँ अगर आपको इंडिया में सेटल होना है तो बेस्ट रहेगा कि इंडिया से इंटर्नशिप करो और इंडिया से ही अपना सारा स्टार्ट करो, पीजी वगैरह सब कुछ. ओके, सो अब इंटर्नशिप खत्म हो गया एंड देन यू गॉट मैरिड, और फिर उसके बाद आपने अप्लाई करा था नॉन एकेडमिक, मतलब दूसरे दूसरे हॉस्पिटल्स में भी. सो उसको कैसे अप्लाई कर? नहीं, एक्चुअली उसके बाद उसके बीच में इंटर्नशिप कंप्लीट होने के मतलब शादी हुई, इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ और मीनवाइल मैं प्रेग्नेंट हो गई. तो आई एम हैविंग अ लिटिल गर्ल, हर नेम इज आराध्या. प्यार से हम लोग उसको आर्या बुलाते हैं, यू ऑल्सो नो. तो उसके बाद से मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया 1 ईयर का. अच्छा. 1 ईयर लाइक मीन्स यस, मैं 2015 में फिर से, मतलब 13 में शादी हुई, 14 में आर्या हुई, तो 15 के मार्च से वापस से मैंने स्टार्ट किया जॉब. मुझे लग रहा था कि सब भूल जा रहा है, लाइक क्योंकि ब्रेक तो हो ही गया जैसे के बाद, और पीजी का एग्जाम नहीं दिया मैंने. तो फिर 2015 के मार्च में मैंने अप्लाई किया था डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में. दिल्ली आ गई उस समय जब आर्या हुई थी, तो मैं अपने होम टाउन चली गई थी. फिर वापस दिल्ली आई, फैब में आ गई थी. फैब में आके मैंने डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई किया. लाइक सफदरजंग में मुझे गायनी मिला, और गायनी की नॉन एकेडमिक. इसके लिए आपको प्रॉपर साइट्स पे, गूगल पे जब आप सर्च करोगे कि नॉन एकेडमिक इन गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको पूरा लिंक मिल जाएगा. तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में आपको जाके वहां पे टाइम शेड्यूल दिया रहता है, इंटरव्यू देना होता है. कुछ कुछ जगहों पे रिटन टेस्ट भी होती हैं. जहाँ पे बल्क ऑफ स्टूडेंट जाते हैं वहाँ वो लोग रिटन टेस्ट लेते हैं, और जहाँ पे कम सीट्स निकलती हैं और कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो लोग कम कैंडिडेट्स, नॉट स्टूडेंट, कम कैंडिडेट होते हैं, तो वो लोग फिर इंटरव्यू ले लेते हैं. तो मेरा दोनों ही जगह पे जीवी पंत हॉस्पिटल और यहाँ दोनों ही जगह पे इंटरव्यू था, और मैं दोनों ही जगह सिलेक्शन हो गया था. बट बिकॉज द गायनिक ड्यूटी वाज क्वाइट हेक्टिक, सो हम लोगों ने डिसाइड किया, मेरे और मेरे हस्बैंड ने, कि ठीक है मैं जीवी पंत से न्यूरोलॉजी में नॉन एकेड जज करूंगी. सो 1 ईयर आई स्पेंड ओवर देयर, and then after finishing that, and meanwhile I started preparation for my MD examinations. Yeah. Different, like the DNB, MD, जो भी NEET. Then एक मिनट, यहाँ पे I want to tell something, because you left your child at the age of just 4 months. तो उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ा सा I want to tell, because हर experience I am sharing here और आप भी शेयर कर रहे हो, that's why. तो क्या हुआ था जब दीदी छोड़ के गई थी अपनी बेबी को, सो आर्या वाज विद अस, मतलब मेरे और मम्मी के पास, और उस समय मैं भी घर पे रहती थी. सो फॉर 3 days उसने कुछ मतलब मिल्क नहीं पिया था, एंड देन वी वर मिसिंग अ लॉट, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दीदी क्यों चली गई, बिकॉज एट दैट टाइम आई आल्सो डोंट नो कि, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि व्हाई दीदी लेफ्ट हर चाइल्ड लाइक दिस. बट एट द सेम टाइम बुरा भी लगता था आर्या के लिए कि आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आर्या 4 मंथ की थी, सो उसको, वो भी अपनी मम्मा को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी. और रात में कभी कभी ऐसा होता था कि आर्या को भूख लगती थी और मम्मा पापा नहीं उठ पाते थे, सो मुझे मिल्क बना के देना पड़ता था.
तो वो जो फेज था ना, दीदी तो आप चली गई थी वहां पे, आप उधर सफर कर रही थी एंड आर्या वाज शिफ्टिंग हियर, सो इतना स्ट्रगल वाला वो फेज था, क्योंकि उस समय 2015 में आई वाज गिविंग माय 12th I know. 10th एग्जाम, सो बोर्ड्स भी आ रहे थे, तो मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था, घर वालों के लिए भी डिफिकल्ट था, आर्य के लिए, सबके लिए था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है लाइफ। हमें लगता है कि बड़ा स्मूथली एडमिशन ले लिया, पास आउट हो गए, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। वी फेस अलॉट, मतलब जो आपको ना पता हो वो भी हम सारी चीजें फेस करते हैं। सो ये पार्ट बताना ज्यादा जरूरी था। So हमेशा लाइफ में रेडी होना चाहिए। या एग्जैक्टली। किसी भी लाइक अगर अगर प्रॉब्लम आएंगे तो सॉल्यूशंस भी आएंगे, बट वी हैव टू बी रेडी कि ठीक है कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आया है तो इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा। एंड जेन्युइन था तो आपका, छोड़ हमेशा के जाना पॉजिटिव आया एटीट्यूड तो। के साथ जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए या कि या नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई मी व्हाई आई, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, व्हाट एवर इज द सिचुएशन, आई एम गोइंग टू टेक इट एंड आई विल पास इन दैट सिचुएशन। या एग्जैक्टली। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट वी शुड नो हाउ टू डील विद दैट। ओके, सो यस, वहाँ घबराना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी चीज घबराना नहीं चाहिए। एंड फिर जीबी पंत में आप आ गए, एंड जीबी पंत में तो मैंने आपका हेक्टिक ड्यूटी देखा ही था, 36 आवर्स का, 24 आवर्स का, लाइक दैट। It was the emergency duties. हाँ, I was posted in emergency. First 3 months I was in OPD, then I was shifted ward 1 month. Then I was shifted to for the remaining period. I was shifted into the emergency, and emergency was quite hectic over there because वहाँ पे cardiac के patient और neuro के patient दोनों ही आते थे. So sometime we have to deal with both. कभी कभी सीपीआर देना, इधर सीपीआर दे रहा है, उधर इपिलेप्सी स्टार्ट हो गई पेशेंट्स को, तो उधर मैनेज करो इधर मैनेज करो। इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली, या असली डॉक्टर वाली फीलिंग। नाइस एंड टफ आल्सो। या एंड देन आफ्टर जीबी पंत यू अगेन वेंट फॉर ईसीआईसी कॉलेज, मतलब वहां पे तो जाके। मेरा रैंक तो गया, मुझे डीएनबी में फैमिली मेडिसिन मिल रही थी, बट दैट टाइम आई डोंट नो व्हाई वी हैड डिसाइडेड नो, आई विल नॉट टेक द फैमिली मेडिसिन, मैंने छोड़ दिया वो। और फिर वापस से मैं यहाँ का कंप्लीट हुआ 1 ईयर, और उसके बाद फिर मैंने दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई किया, दूसरे सब्जेक्ट के लिए। मैं दूसरे सब्जेक्ट में भी करके देखना चाहती थी, क्योंकि दिस ब्रांच इज द सुपर स्पेशलिटी। सो अगर इन फ्यूचर में कभी मुझे खुद की क्लिनिक खोलनी पड़े, सपोज मैं पीजी ना कर पाऊँ, मुझे खुद की क्लिनिक खोलनी पड़े, तो मुझे एक ऐसे सब्जेक्ट में भी आना चाहिए जिसमें मैं जनरल प्रैक्टिशनर की तरह प्रैक्टिस कर पाऊँ। सो मैंने फिर ईएसआई फरीदाबाद में 1 ईयर की जॉयशिप किया, वो था पीडियाट्रिक में, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट। और बहुत अच्छे से वहाँ के टीचर्स फैकल्टी ने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया कि हाउ टू हैंडल विद किड्स। और ऑलरेडी मेरी तो बेबी थी, तो थोड़ा तो मुझे पता चल ही गया था कि कैसे वो ड्यूरेशन होता है, कैसे मदर्स काउंसलिंग करना होता है, क्या फादर की काउंसलिंग होती है, क्या मतलब क्या बेबीज के साथ करना है, क्या नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी इन दैट ब्रांच। And meanwhile I also prepared for the this PG examination, और तब जाके मुझे जैसे ही मेरा वहाँ कंप्लीट अभी नहीं हुआ था, मैंने 1-2 महीने पहले ही क्विट कर दिया, क्योंकि मुझे एम्स का एग्जाम देना था। तो लाइक फैब में मैंने क्विट किया, और मई में एग्जाम था, और फिर मैं स्टार्ट करने लगी प्रिपरेशन अपना इसका। नॉट फैब, जनवरी में एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था। तो ईएसआई मैंने छोड़ा, उसके बाद से फिर एम्स के लिए प्रिपरेशन, एम्स में एग्जाम दिया। फिर उस समय शायद मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया, और उसके बाद फिर मैंने दिसंबर वाला एम्स प्लस नीट दोनों दिया, तो इसमें मेरा रैंक आ गया, और मुझे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल रही थी ओपन काउंसलिंग में। तो मैंने इसको चूज किया, क्योंकि मुझे फिर ये कुछ जगहों से पता है क्या कि आफ्टर व्हाट इज द स्कोप ऑफ आफ्टर डूइंग एनाटमी, वो सब पता करने के बाद से मैंने चूज किया एनाटमी की, ठीक है मुझे एनाटमी में करना है। इसके 2 फायदे थे, या तो मैं टीचिंग में जाऊंगी या फिर मैं रिसर्च में जाऊंगी, दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे। along with that, if I do not want to do anything, then I can also practice as a general practitioner on the basis of my MBBS degree। तो अगर मुझे करना होगा लाइक कुछ फेलोशिप वगैरह टाइप, तो फेलोशिप करके मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ। तो मेरे सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं।
तो दैट्स व्हाई आई चूज. बट एम्स का टैग अपने आप में बहुत बड़ा है, लाइक, और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है एम्स के अंदर. सो इट वाज वेरी गुड लर्निंग ओवर हियर. Okay. Faculties were very good. So what you are planning for the next? अब इसके अलावा क्या करना है? This will be secret. I will not tell now. I will tell after getting that. Then you have one more option to make the video. Okay, but आप आते रहेंगे I मेरे just video want में। break for the few months. First, I want to take break for the few months. After this hectic schedule, like in MD, we need to write the thesis. Then there is examination. After that, only we able to get the degree. तो अभी ये सारे बहुत काम किया अभी मैंने, तो ये मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए. Yeah, And then I will decide what next. अच्छा, okay. This is top secret. Okay, we'll keep that secret. ओके, सो अभी तक के लिए तो इतनी जर्नी है एंड बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी दीदी शेयर करेंगे. कुछ चीजें बाकी रह गई है बीच बीच की जो अब नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे. बट इट वाज अ कंप्लीट वीडियो. आई वाज ट्राइंग टू मेक लाइक अ कंप्लीट वीडियो की एक कंप्लीट जर्नी हो जाए दीदी के लिए, ताकि क्योंकि हम दोनों ही बाहर से एमबीबीएस करके आए हैं. सो बहुत सारा डाउट भी होता है, क्योंकि आपको अगर मैं कुछ बताऊं तो वो दो जगहों का एक्सपीरियंसेस आता है. कि मैं दीदी से भी पूछती हूँ कि दीदी इस चीज के लिए मुझे कैसे करना होगा, मुझे सीखना होगा, क्या करना होगा. देन मेरे कॉलेज का भी अपना एक्सपीरियंस होता है. सो वो सारी चीजें मिला के बताती हूँ मैं आपको कुछ भी. एंड ऐसे ही बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी हैं दैट आई वांट टू शेयर ऑन माय चैनल. सो दीदी के भी बहुत सारे दोस्तों को हम लेकर आएंगे वापस. एंड या जिसने इंडिया से किया, इंडिया से फिर एम्स के अंदर किए हैं, तो उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं यार, डेफिनेटली. Yeah. So इस वीडियो से I want to conclude few things. The first is that when you are choosing a medical field or a medical life, please be sure, मतलब be clear about the things, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएंगी आपको फेस करने के लिए and you should be prepared for that. And the second thing is about those कि लोग क्या कहेंगे. लोग will be always there to say something because there is always someone who will criticize you. आप इंडिया के भी किसी प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे. Yeah, don't hear. अगर आप इंडिया के किसी या सो हमें सुनना नहीं होता है. किसी भी फील्ड में, एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा है, किसी भी जनरल फील्ड में, जनरल लाइफ के एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, कहीं भी आप जाइए, ऑलवेज देयर विल बी समवन हु विल से दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो हियर फ्रॉम योर हार्ट व्हाट यू वांट टू बिकम और व्हाट यू वांट टू डू अकॉर्डिंग टू यू. आपका always see dream and try to fulfill that. Always see dream and try to fulfill that. It's your dream, your life, your choice. And just you need your family support. You just need your family support. If your family is agree, if you are agree, then leave the all सब कुछ छोड़ो, सिर्फ अपना और अपने परिवार की बात सुनो और करो वही जो तुमको करना है. So ये वीडियो यहीं पे एंड करते दीदी. We'll meet you in the next video probably. So thank you so much for being with me. I hope आपका भी एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. Yeah, of course with Arya. Yeah.